السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ویلکم یو ونس اگین ان اندر ایپیسوڈ آف میٹ یور مینٹور. تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی ایپیسوڈز میں آپ کو مختلف مینٹور سے ملاتا رہا. ان سے ہم پوچھتے رہے ریگارڈنگ دیئر ٹیچنگ میتھڈالوجی، ان کا ایک پروفائل کے بارے میں، کس طرح وہ بچوں کو لیکچر ڈلیور کریں گے یا آنے والے دنوں میں ایگزام کے لیے کس طرح سے وہ پریپیئر کرائیں گے. آج ہم اس ایپیسوڈ میں تھوڑا سا آپ اس کو ایک نیا احساس آپ کو اس میں اس طرح سے رہے گا کہ نہ صرف ہم ایک مینٹور کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں آج، بلکہ اس مینٹور کے تھرو ہم آپ کو ایک اور خاص قسم کی نیوز دینے جا رہے ہیں جو کہ وہ خود ہی دیں گے آپ کو ریگارڈنگ اے نیو پروگریس یو کین سے ایٹ دا رائز. اور آج کے جو مینٹور ہیں جن سے میں آپ کو آج ملانے جا رہا ہوں، ان کا نام جو ہے وہ شہباز سعید ہے، ویری ینگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اور باقی باتیں ہم انہیں سے پوچھیں گے اور ان کو ویلکم کرتے ہیں. جناب جی سر، شہباز سعید صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ سر، آپ سنیں ٹھیک ٹھاک. سو ویری ینگ انرجیٹک، جسٹ ریسنٹلی اسٹارٹیڈ یور پروفیشن، کوالیفائڈ. لے سر، سب سے پہلے تو آپ بتائیں اپنے بارے میں تھوڑا سا، نام کے علاوہ. نام تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، شہباز سعید. تو اس کے علاوہ اپنے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں آپ؟ سر اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ ینگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، تو میرا جولائی 21 میں کوالیفیکیشن ہوئی ہے. ایک ایوریج ٹائم پیریڈ تھا کوئی 5.5 سے 6 سال، اس کے دوران کوالیفیکیشن ہوئی ہے. اس کے ساتھ بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں IBA پنجاب یونیورسٹی سے. اور باقی رائز میں آنے سے پہلے ICAP میں ایز این اسسٹنٹ مینیجر کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ، جو ہم سنتے ہیں کہ جی ہو آڈٹ دی آڈیٹرز، تو وی یوز ٹو ڈو دیٹ. ہم فرمز کے مطلب QCR آڈٹ کرتے تھے. تو یو آر ورکنگ ان این ICAP؟ جی ان ICAP. تو اس کے علاوہ یہ تھا جی ICAP میں جاب تھی، تو جیسے ہی کوالیفائی ہوا ہے تو شروع سے ایک پیشن تھا کہ اپنی پریکٹس کرنی ہے. تو رائٹ ناؤ آئی ایم آلسو ون آف دی ینگیسٹ آڈٹ پارٹنرز ان پاکستان ایز ویل. میں نے اپنی آڈٹ فرم اسٹارٹ کیا شہباز سعید اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے نام سے، اور ساتھ آپ لوگوں کو جوائن کیا رائز پریمیئر اسکول آف اکاؤنٹنسی کو. یہ دونوں چیزیں پیرلل چل رہی ہیں الحمدللہ. سو یو آر ان کنسلٹنسی ایز ویل ایز ان ایکیڈیمک رننگ پیرللی بوتھ آف دا سیکٹر. اچھا، رائز میں آپ جو سبجیکٹ آپ لے رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو بزنس، جی بیسیکلی آپ اس وہاں سے آپ اس کو کر رہے ہیں. جی. اور اس کے علاوہ آپ کا کیا رول ہے رائز کے اندر اسپیسیفکلی؟ آئی وڈ آسک یو ریگارڈنگ دا نیو انیشیٹو دیٹ یو ہیو ٹیکن ود اس اینڈ دیٹ از کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ. اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. سر اس کے بارے میں آپ جو کیونکہ I2B میں نے اسٹارٹ کیا تھا انٹروڈکشن ٹو بزنس، الحمدللہ اس میں اچھی ایک پروگریس جاری ہے. وہ جو آپ لوگوں کی نظر میں بھی آئی ہے، اسی کے بیس پہ پھر آگے آپ لوگوں نے ایک رسپانسبلٹی مجھے دی ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ جو کہ ان پیرلل ہے اب ہمارے جو بھی اکاؤنٹنسی فیلڈ ہے. ریسٹ آف دا مارکیٹ جتنے بھی کالجز ہیں جی اس میں اس طرح نہیں ہے. کالجز میں ڈفرینٹ کالجز میں ہے کوالٹی ایشورنس، لیکن اس وہ ایک نان CA پرسنل اس کو ہیڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے کوالٹی میں اس طرح بہتری نہیں آ سکتی جس طرح ہم اب پلان کر رہے ہیں اپنے رائز پریمیئر میں. تو جی کوالٹی ایشورنس میں الحمدللہ پروگریس ہماری اسٹارٹ ہو گئی ہے. ابھی ریسنٹ ہم کوالٹی موک ایگزامس ہم نے ہولڈ کیے ہیں اور ابھی چل رہے ہیں. 2 سبجیکٹس کے رہ گئے ہیں الحمدللہ. اس میں یہ ہے کہ جی پچھلے جو موکس تھے یا جو ریسٹ آف دا مارکیٹ میں ہوتے ہیں اس سے بڑا ہٹ کے ہے. ہماری کوشش ہے کہ ایک ICAP کے موکس کا ریپلیکا دیا جائے اسٹوڈنٹس کو، وہی فیل ہو، وہی وائبز ہوں، اسی طرح انڈیپینڈنٹ کوالیفائڈ ریسورس سے ٹیسٹنگ ہو اور ٹائملی اناؤنسمنٹ آف ریزلٹس ہوں. تو یہ اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں، تو انشاءاللہ ایک وہ کریں گے. باقی میں بچے بڑے بچوں کے بہاف پہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. کچھ بچے میرے پاس آتے ہیں انڈیاس میں، سر کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ کرتا کیا ہے، واٹ اس کا کیا رول ہے؟ تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ بڑا کرٹیکل رول ہے. آپ ذرا ان کو آسان سے لفظوں میں بتائیں کہ یہ کیا ہے کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ مینس، اس کا کیا رول ہے بچوں کے سکسیس میں، اس کا کیا رول ہے یہ اسپیشلی آپ بتائیں. بالکل سر، دیکھیں کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ نام سے ظاہر ہے کوالٹی کو ایشور کرنا ہے، جو کہ ہماری مارکیٹ میں یا آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں کوئی ایسا جس کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا. لیکن رائز پریمیئر اسکول کیونکہ اس کے اوپر کافی ورکنگ بھی کر رہے ہیں کوالٹی اپنی امپروو کرنے کے لیے. اس میں یہ ہے کہ جی سب سے پہلے انڈیپینڈنٹ
ऑन लाइन टेस्टिंग हम लेके आ रहे हैं। काफ़ी कॉलेजेस में अभी तक फिजिकल टेस्टिंग होती है, हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर भी राइस प्रीमियर ने बनाया है। उसके अलावा इंडिपेंडेंट टेस्टिंग होगी। इंडिपेंडेंट टेस्टिंग से मुराद ये है आप फील करेंगे जैसे आई कैप ही टेस्टिंग कर रहा है। अदरवाइज हर टीचर अपने अपने टेस्ट लेते हैं, हर टीचर की ये एक अप्रोच होती है और वो उसी के मुताबिक अपना टेस्ट बनाता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि आई कैप की क्वालिटी के मुताबिक हो और उसी के मुताबिक क्वेश्चंस हों, वो फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हमारी वर्किंग स्टार्ट हो गई है और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे एक तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, दूसरा कंटेंट की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में हमें बच्चों से ये कमेंट सुनने को नहीं मिलेगा कि मैंने मॉक एग्जाम दिया था उसमें तो मेरे 90% थे लेकिन एनुअल एग्जाम में मैं फेल हो गया। हाँ, इंशाल्लाह ये नहीं होगा। आप इसको देखें कि कोशिश पूरी है कि एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ आई कैप हो इंशाल्लाह। वैसे उसमें ऐसा क्यों होता था, बच्चे मॉक में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे, आई कैप में फेल होते थे? सर उसमें ये होता है कि एक तो रीज़न है कि अक्सर मॉक बनते थे, मतलब टीचर असिस्टेंट्स ने बना लिए या इस तरह वो पास पेपर्स को ही दोबारा पूछ लेते थे और बच्चे दूसरे नंबर पे सीएस नहीं लेते थे। पहले भी 9 to 4 या 5 PM तक मॉक चलते रहते थे, तो एग्जैक्ट जो एग्जाम हॉल की फील है, जो प्रेशर है, वो फील ही नहीं होता था बच्चों को। यहाँ पे बड़ा इजी पेपर को अटेम्प्ट करते थे और कई बार 4-4, 5-5 घंटे बैठ के भी कर लेते थे। वहाँ का प्रेशर ही कोई और चीज़ है। तो इस बार कोशिश ये है कि जी एग्जैक्ट वो लेके आए। दूसरे नंबर पे जब क्वालिफाइड रिसोर्स उसको चेक करेगा, मार्क करेगा और टाइमली फीडबैक देगा बच्चों को। टाइमली फीडबैक बड़ा ज़रूरी है। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त से मॉक होल्ड करना स्टार्ट कर दी, जबकि कुछ कॉलेजेस में 20-22 से भी वो कर रहे हैं। 20-22 से जब आप करते हैं, 8 दिन के 30 अगस्त को एंड होंगे, 5 से तो पेपर हैं, तो उस वक्त आप क्या फीडबैक देंगे? अगर खुदा न खास्ता बच्चा फेल होता है मॉक में, अब बताएंगे वो डीमोटिवेट हो जाएगा। पास भी होगा तो अब वो इम्पैक्ट नहीं कर सकता ज़्यादा। मतलब आपने चेकिंग के लिए भी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंगेज किए? एग्जैक्टली। ओके। और इसके साथ टाइमली अनाउंस करेंगे, बच्चों को फीडबैक देंगे और प्लस एक जो अभी तक मिसिंग था इसमें, वो एग्जामिनर कमेंट्स वो नहीं टीचर्स प्रोवाइड करते थे या दूसरे कॉलेजेस भी नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने उसके ऊपर भी किया क्योंकि हमारी कोशिश फिर से वही है कि एग्जैक्ट रेप्लिका बनाना है हमने आई कैप का, और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी इसमें। मतलब आप इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि बच्चे वंस दे gone through from the mock exam and when they are sitting in the real exam then they shouldn't feel any difference with it. एग्जैक्टली। उन्हें लगे कि जनाब इट्स बिल्कुल same, बिल्कुल actually we are appearing second time. जी जी बिल्कुल ऐसे ही, यही Just want कोशिश to give them a real feel of the exam. जी, जी। जनाब बड़ा ज़बरदस्त। इसके अलावा आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जैसे पीआरसी के लिए आप मुझे बता रहे थे कि दैट यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, यू आर वर्किंग ऑन अ वेरी बिग थिंग, तो वो जरा थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ, क्या उस पे काम कर सर बिग थिंग्स में डिफरेंट है पीआरसी के? हाँ जी, पीआरसी के एक तो सबसे पहले ही अटेंडेंस का सिस्टम हमारा, मैं वो आपको थोड़ा बता दूं कि ऑनलाइन अटेंडेंस एक हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू होगी। अटेंडेंस क्योंकि बड़ी ज़रूरी है, बच्चा क्लास में आता है तो कोई ना कोई चीज़ सीखता है। कोशिश ये है कि जी वो अटेंडेंस हो, टीचर्स भी वीकली या मंथली रिपोर्ट करें जो भी बच्चे ज़्यादा एब्सेंट हैं, और जो पेरेंट्स को भी उनकी टाइमली रिपोर्ट हो ताकि वो भी ज़्यादा वॉरी ना हो, क्योंकि हमारी उनको लेकर भी काफ़ी वो कंसर्न्स आते हैं। दूसरे नंबर पे एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव आपके साथ, आपका आइडिया था, उसको भी लेके हम इंशाल्लाह चल रहे हैं, वो है फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स, जिसके ऊपर कल आपने एक वीडियो भी अपनी लॉन्च की है। उसका पर्पज़ ये है कि बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो टीचर्स भी बहुत ऑब्वियसली बेहतर तरीके से समझाते हैं, हमारे पास बड़े क्वालिफाइड और पुराने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, लेकिन स्टिल जो बच्चा एक दूसरे बच्चे को पढ़ाता है, स्टूडेंट पढ़ाता है, उसका एक लेवल भी और होता है, वो अपने लेवल पे जाके करता है। तो दूसरे नंबर पे आपने जैसे बताया था कि ये इसका पर्पस बहुत लॉन्ग टर्म है, हम चाहते हैं कि यहाँ से स्टार्स निकलें और बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, उनका इंटरपर्सनल स्किल्स उनकी बूस्ट हो। तो उस पर भी ये है कि शॉर्ट वीडियोस बना के स्टूडेंट्स हमारे हमें व्हाट्सएप करेंगे, उसमें से हम चूज़ करके जो अच्छी क्वालिटी का कंटेंट होगा उसको अपने पेज पे भी करेंगे, और जो ज़्यादा रिस्पॉन्सेज इसको मिलेंगे वहाँ पे लाइक्स हो गए, कमेंट्स एक्सेट्रा, उसको इंशाल्लाह हम एक फ्री कोर्स भी नेक्स्ट सेशन में देंगे। बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, एक और बात जो आप मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि आप मुझे बता रहे थे कि पीआरसी के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए आप अपने सॉफ्टवेयर में एलएमएस में कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि बच्चे अगर एक चैप्टर ख़त्म करते हैं तो एंड दे फील के दे वांट टू इवैल्यूएट देमसेल्फ, तो वो खुद ही सॉफ्टवेयर पे जाके चैप्टर सेलेक्ट करें,
टेस्ट उनको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जितने टाइम का जितने सवाल का वो चाहते हैं, कोई इस तरह का आप मुझे बता सर बिल्कुल ये एक वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव राइज प्रीमियर ले रहा है। और इसमें ये है कि एक तो जो रेगुलर टेस्ट होते हैं क्लासेस में, लेट्स से चैप्टर वाइज हुआ करेंगे, वो तो 10 चैप्टर्स हैं फॉर एग्जांपल एक के, वो उसको कर लेगा। लेकिन हमारे पास जो डेटा बैंक हम बना रहे हैं वो इंशाल्लाह इतना ज़बरदस्त और क्वालिटी का डेटा बैंक होगा, और उसकी क्वांटिटी भी बड़ी ज़्यादा होगी। ऑडिट में जैसे हम पढ़ते हैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, तो उस तरह का एविडेंस तो वो नहीं होगा, यहाँ पे डाटा होगा। तो डाटा को इस तरह हम जो एक्सेस देंगे तमाम स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट घर बैठा हुआ है, उसका दिल करता है जी आज चैप्टर 1 के मैं 50 सवाल करना चाहता हूँ क्वालिटी के, उसको इंशाल्लाह ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगी, वो वहाँ पर जाकर कर सकता है। उसका दिल करता है जी मैंने 3 चैप्टर हो गए हैं, 1 to 3 चैप्टर्स के मैं करना चाह रहा हूँ, कोई 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि घर बैठे हुए रिमोटली, जिस तरह ICAP में भी हमने बेसिकली CBT करना है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, तो इंशाल्लाह वो घर बैठे जितने ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहता है उसको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की वो हम अलाउ करेंगे, परमिशन देंगे। वेरी गुड। ये बड़ा अच्छा, मतलब आप अंडर द हेड ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट यू आर डूइंग वेरी वेल। आपकी एफर्ट्स को जनाब हम अप्रिशिएट करते हैं। और इसके अलावा आप अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में कुछ बताएं। आप इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपका बड़ा इंटरेस्ट है जी। आने वाले दिनों में यू आर लुकिंग फॉर लॉ एंड कॉस्ट ऑडिट, तो अभी आपका आने वाले दिनों के लिए आपका प्लान तो यही है। मैं क्या थोड़ा सा बच्चों को बता दूं, तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के बारे में आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी, आप किस तरह से रट्टे चिट्टे लगवाते हैं? आप बच्चों नहीं सर 50 सवाल दे देते हैं कि ये कर लें हो जाएगा पेपर? नहीं, उस पर मैं आपको बताता हूँ मेरी जो मेथोडोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी से भी मेरी स्टडीज़ हैं, तो क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ CA वाली स्टडीज़ और यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है चीज़ों का, तो मेरी कोशिश है कि दोनों का मिक्स को मैं लेके चलूँ। I2B या PRC जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, अगर उसको अच्छे से पढ़ाया जाए तो बच्चे को ज़्यादा परेशान होने की वैसी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये थोड़े से कन्वीनियंट एग्जाम्स हैं। इसमें मेरी ये कोशिश होती है कि क्लास में इंटरेक्टिव सेक्शन ज़्यादा वो रखें उसको, क्योंकि I2B जो है इसका मतलब अपने बिजनेस समझाना है। मैं क्योंकि खुद एक प्रैक्टिसिंग मेंबर हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि मोस्टली जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो जॉब्स की तरफ ना जाएं। हालांकि मार्केट में ज़्यादा जॉब्स की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल है कि वो इसकी तरफ जाएं। मेरी ये कोशिश होती है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें, इंटरपर्सनल स्किल्स को करें। मैं अभी भी एक सेशन में प्रेजेंटेशंस के ऊपर मेरा फोकस है कि स्टूडेंट्स को रिवीजन के तौर पे वो स्टूडेंट्स खुद आके अपना वहाँ पे बयान करते हैं। वही जो फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स वाला है, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट ये अप्लाई होता है, स्टूडेंट ही स्टूडेंट को सारे कॉन्सेप्ट समझाता है। तो इंटरेक्टिव सेशंस के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है। You want to give some more entrepreneur to the country. You want to give them more leaders. Exactly sir, exactly. इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो अल्लाह ताला आपको इसमें बरकत डाले। और बड़ा अच्छा रहा जी आपके साथ, बड़ा मज़ा आया। सो होपफुली इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ और भी सेशंस होंगे, जैसे जैसे आपका क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है वो आप इसको आगे लेके चलेंगे, बच्चे इससे फैज़याब होंगे, तो दुआएं भी आएंगी, ये डिपार्टमेंट भी फ्लरिश करेगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपके साथ सिटिंग्स सेशंस होते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हमें ज्वाइन करने का। ले जनाब, ये थे जी शहबाज सईद साहब, आपसे बात कर रहे थे रिगार्डिंग द profile, regarding the teaching methodology and especially focusing on quality assurance department at RISE. और मेरे ख्याल में this is the unique feature of the RISE quality assurance department, headed by a qualified chartered accountant and being backed by a qualified chartered accountant means इसका कहने का मतलब ये है कि इसको at the outset भी chartered accountant lead कर रहा है, और पीछे जो इसकी टेस्टिंग है, उसकी वैल्यूएशन है, फीडबैक है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक फीचर एट राइस। नो वन इन द लाहौर और इवन इन पाकिस्तान इज डूइंग और वर्किंग ऑन द सेम लाइन्स। लेकिन आप सबसे आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार से मोहब्बत से सुना होगा। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँचे तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू जनाब।